تھینکس یہاں تک آنے کے لیے۔ نجیب کی بات ادھوری رہ گئی تھی جب نسوہ گاڑی سے اتری اور نجیب کی سائڈ کا دروازہ کھولا۔ ہاتھ دے نجیب، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نسوہ نے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا، نجیب نے فوراً سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا اور وہ اسے سہارا دیتی آفندی مینشن میں داخل ہوئی، جہاں سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ نجیب بیٹا، تم تو کل ڈسچارج ہونے والے تھے۔ کیوں ماں، آج دیکھ کر برا لگ رہا ہے کیا؟ ناہید بیگم شوق ہوئی۔ ایسے کیوں کہہ رہے ہو بیٹا؟ امارا بہو، نجیب کو اوپر بیڈ روم۔ ضرورت نہیں ہے، نسوہ ہیں میرے ساتھ، چلے نسوہ۔ وہ جو باہر سے اندر تک نسوہ کے سہارے آ رہے تھے، اب سب کے سامنے نسوہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیا تھا انہوں نے۔ اوپر جانے سے پہلے وہ سینٹر میں کھڑے ہو کر سب کی توجہ حاصل کر چکے تھے۔ یہ نسوہ نجیب آفندی ہیں، میری پہلی بیوی، میری پہلی محبت، میرے دو خوبصورت، محنتی، تعلیم یافتہ، باشعور بچوں کی ماں۔ گھر کے بچوں تک یہ بات پہنچ چکی تھی۔ یہ بازاری عورت؟ ماہر کو ایک زوردار تھپڑ مارا تھا نجیب نے۔ تم اپنی ماں سے پوچھو کہ کون تھا بازاری۔ ڈیڈ، نجیب نے ایک اور تھپڑ مارا تھا ماہر کو۔ آئندہ زبان سنبھال کر بات کرنا ورنہ بولنے کے لائق نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ ان سب میں ایک بار بھی اس نے ماہر کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا، ایک بار اسے بیٹا نہیں کہا تھا۔ وہ ان دنوں میں پہلی بار غصے میں آیا، پہلی بار اس نے مکمل جملے بولے تھے۔ آج جو باتیں اس نے امارہ کو لے کر کی تھی، سب چپ ہو چکے تھے اس وقت۔ آپ اچھا نہیں کر رہے، میں تمہیں، نجیب کہتے کہتے چپ ہو گیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا تھا، پہلو میں کھڑی بیوی کے ہاتھوں کو پھر سے ہاتھ میں لیا اور ایک بار پھر مڑ کر مخاطب ہوا سب سے۔ میں وہ مرد ہوں جس نے جوانی کے نشے میں، دولت کے نشے میں، دوسری عورت کے نشے میں اپنی پہلی بیوی کی ناقدری کی، منان جیسی اولاد کو ٹھکرا کر نہ صرف خود کی تباہی کا آغاز کیا، میں نے ایک غلط فیصلہ لیا جس کا پچھتاوا مجھے کبھی سکون سے جینے نہیں دے گا، اور وہ فیصلہ دوسری شادی کا تھا۔ وہ نسوہ کا ہاتھ پکڑے اوپر چلا گیا تھا، پر اپنے بیڈ روم کی طرف نہیں، اس کمرے کی طرف جو اس کا اور نسوہ کا تھا، جو ان دونوں کا بیڈ روم تھا۔ منان سر، دروازے پر منان کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے ہاتھوں سے پرس گر گیا تھا۔ وہ ہاسپٹل جا رہی تھی، پر منان کی حالت دیکھ کر وہ قدم خود بخود پیچھے ہٹا گئی۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک؟ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ یہ خون دیکھ رہی ہو، یہ میرے باپ کا خون ہے، وہ کہتے ہوئے لڑکھڑایا تھا جب منیشا نے اسے سہارا دیا۔ سر پلیز اندر آ جائیں۔ اتنے دنوں سے کہاں تھے آپ؟ آپ نے اس دن کپڑے بھی نہیں بدلے۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیا حالت بنا لی ہے آپ نے؟ اس دن سے آپ نے کپڑے بھی نہیں بدلے، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ وہ جیسے ہی اسے پکڑ کر اندر لائی، صوفے پر بٹھایا اور منان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں اب تھک گیا ہوں منیشا، کوئی رشتہ مخلص نہیں، کوئی بھی۔ ماں پچھلے 4 دنوں سے اس شخص کے پاس ہیں، اس کی خدمت کر رہی ہیں، پہرا دے رہی ہیں اس پر۔ ایک بار نہیں پوچھا میرا میں کہاں ہوں، کیسا ہوں۔ سر آپ کبھی خود کو اپنی ماں کی جگہ رکھ کر سوچیں، انہوں نے ساری زندگی اپنی اولاد پر وار دی، اب اگر وہ اپنے شوہر کا ساتھ چاہ رہی ہیں تو گناہ کیا ہے؟ وہ شخص اس قابل ہے؟ منان نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچ کر پوچھا، جس کے چہرے کے درمیان ابھی کچھ فاصلہ تھا۔ یہ فیصلہ کرنے کا حق آپ کی ماں کا ہے۔ یا رائٹ، ماں کا حق ہے۔ وہ تو معصوم ہے، پھر سے ان کی باتوں میں آ جائیں گی، دھوکہ دے دیں گے وہ پھر سے ماں کو، تو کھانے دے دھوکہ، وہ بیوی ہیں ان کی، اتنا شعور تو انہیں بھی ہے۔ اگر چند لمحوں کی قربت کے لیے دھوکہ کھانا چاہتی ہیں تو کوئی بات نہیں، محبت کرنے والے اتنا کچھ برداشت کر جاتے ہیں، وہ تو پھر بیوی ہیں ان کی۔ منان نے منیشا کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ میں کچھ لے کر آتی ہوں۔ وہ جانے لگی تھی جب اس نے پھر سے بازو پکڑا تھا اس کا۔ مجھ سے شادی کریں گی مس منیشا؟ مجھے محبت ہو گئی ہے آپ سے، آپ کی باتوں سے۔ واٹ؟ منیشا نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا، منان کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ چھڑا کر منان کو پوری طرح لٹا دیا تھا صوفے پر۔ محبت؟ وہ بھی منان آفندی کو مجھ سے؟ کبھی نہیں۔ سنا تھا لوگ نشے میں سچ بولتے ہیں، آپ نے جھوٹ بول کر سنی سنائی بات کو ہی جھٹلا دیا مسٹر منان۔ محبت کے امتحان اس کے جوبن میں ادا ہوں تو محبت کی شدت کا حق ادا ہوتا ہے۔ ساری زندگی گزر جانے کے بعد احساس جاگے تو کیا جاگے۔ نسوہ، نجیب اسی بیڈ روم کی طرف لے گئے تھے جو کمرہ کبھی ان دونوں نے شیئر کیا تھا۔ کمرے میں جاتے ساتھ ہی نسوہ نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کا تھا۔ بس کیجئے نجیب، ایکٹنگ اچھی کرتے ہیں آپ، پر اس 4 دیواری میں ضروری نہیں، اور ساتھ ہی سیل فون سے ایک کال ملائی۔ ڈرائیور کے ہاتھ لگیج بھیج دو بیٹا، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں، میں ایسے لوگوں کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گی تم دونوں پر۔ نجیب کی آنکھوں میں دیکھتے ہی بات مکمل کر کے اس نے فون بند کر دیا تھا۔
निस्वा, वो सब एक्टिंग नहीं थी। वो जो मुझे बहुत साल पहले कर देना चाहिए था वो था। आराम करें, आपको सख्त ज़रूरत है आराम की। बेड पर बिठाकर वो दूसरी तरफ जाने लगी थी जब नजीब ने उसका हाथ पकड़ा था। मुझे आपकी ज़रूरत है निस्वा, बैठ जाएं यहाँ मेरे पास। उस लम्हे कुछ तो था नजीब की आवाज़ में, वो तलब थी जिसने निस्वा को उसके पास बैठने पर मजबूर कर दिया। निस्वा, कुछ वक्त के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बस आपका नजीब बनकर रहूं। माजी का हर्ज जाई नहीं। निस्वा के चेहरे पर हाथ फेरते बहुत प्यार से उसने पूछा था। नजीब, आपसे कुछ साल की कुर्बत ने बस कुछ साल ही अपनी नज़र किए, मगर उस हरजाई ने मेरी सारी जिंदगी खा ली। नजीब बेटा, निस्वा ने खुद को नजीब की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की। नजीब ने जैसे ही निस्वा के चेहरे से हाथ हटाए वो उठकर बाथरूम की तरफ चली गई, पर कबर्ड से जो हाथ में आया कपड़ा वो लेकर। नजीब, आप ठीक हैं? वो उसी जगह को तकता रह गया जहां निस्वा बैठी थी। नजीब, दादी को, वालदा को, सबको छोड़कर उसकी नज़र अम्मारा पर गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की? मैं क्या लिख कर दूं कि तुम्हें बेदखल कर चुका हूँ? दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ बेशरम। अम्मारा का हाथ पकड़कर रूम के बाहर फेंक दिया था और फिर दरवाजे को एक झटके से बंद किया था नजीब ने। नजीब बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? इस औरत के पीछे? वो औरत बहू है आपकी, बीवी है मेरी माँ। इज्जत नहीं दे सकती तो यहाँ कर क्या रही हैं आप मेरे कमरे में? नजीब बेटा, गहरा सांस लो, बैठो यहाँ। दादी ने बहू को एक नज़र देखा और फिर बाहर जाने का कह दिया। नजीब को जैसे ही बेड पर बिठाया था, निस्वा भी फ्रेश होकर बाथरूम से निकल कर आ चुकी थी। निस्वा बेटा, मेरे नजीब की ज़िंदगी बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए हम सबको माफ़ करना बहुत मुश्किल होगा, मगर कोशिश करना, अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद फरमाता है। जब निस्वा ने कोई जवाब ना दिया तो दादी चली गई। मैं खाना ऊपर भिजवा रही हूँ, खाकर सोना तुम दोनों। बालों को टॉवल से साफ किए वो जैसे ही ड्रेसिंग के सामने बैठी, हर एक चीज़ उसके सामने गूंजने लगी। वो शीशा, उस पर पड़ी चीज़ें, वो नाइट गाउन जो उसने पहना था। आपको याद है, ये मेरा फेवरेट नाइट गाउन था निस्वा, मैं बहुत शौक से लाया था आपके लिए। पर निस्वा ने कोई जवाब नहीं दिया था। बाल संवारते संवारते वो माजी की तल्ख यादों में धंसती चली गई थी। आपको वो सब याद नहीं आता जिसने हमारे रिश्ते को ख़राब किया? वो हवस, वो अफेयर अम्मारा के साथ, वो वन नाइट स्टैंड आप कभी नहीं भूलेंगी। जब तक आपका चेहरा सामने रहेगा मैं याद रखूंगी हर बात, हर अजियत। मैं चेहरा कहीं नहीं लेकर जा सकता निस्वा, जब तक जिंदा हूँ तब तक तो नहीं। आप बस बातें। वो उठने लगी थी जब उसके सर में दर्द शुरू हुआ था और नजीब जल्दी से उठकर उसकी तरफ बढ़ा। उसके जिस्म में भी तकलीफ उठी थी, पर उसने सब इग्नोर करके निस्वा की तरफ कदम बढ़ाए थे। निस्वा, बस चुप कर जाएं, अभी लेट जाएं। मेडिसिन नहीं खाई? कितनी लापरवाही करती हैं आप। मैं ठीक हूँ, बस चक्कर आ गया था। पर नजीब ने उसकी बात अनसुनी की थी और निस्वा को बेड पर लेटा दिया। पाँव की जूती उतारकर उसकी टांगें सीधी की तो निस्वा के पर्स से मेडिसिन निकालकर जल्दी से मुलाजिम से दूध का ग्लास मंगवाया और उसे दवा खिलाई। अच्छा, ये गाउन अभी भी फिट आ रहा है। निस्वा के मुंह से बेसाख्ता हंसी निकली। आप साइज कुछ ज़्यादा बड़ा ले आए थे नजीब। नजीब टांगों की तरफ जैसे ही बैठा, निस्वा ने सिमटने की कोशिश की, पर नजीब ने अपनी टांगें उसके घुटनों पर रख ली थी। नजीब, बस कर जाएं, आंखें बंद करें और सोने की कोशिश करें। पाँव की तली पर अपनी उंगलियां फेरते उन्होंने आहिस्ता से कहा। कुछ देर में निस्वा तो सो गई, पर नजीब आफंदी, वो नहीं सो पाया था। क्या जिंदगी बना ली मैंने, मैं यहाँ इस हालत में और आप इस बीमारी में निस्वा। एक औरत के बहकने से चाहे नस्लें खराब हो ना हो, मगर मर्द का बहकना खानदानों के खानदान तबाह कर देता है। न मैं अफेयर चलाता, न दूसरी औरत की जिद करता, न बेटे से नफरत करता और न घर से आपको जाने पर मजबूर करता, तो आज ये सब अलग ना होता। आप, मैं, मेरे बच्चे, ना आपको ये बीमारी होती और ना मैं उस बदजात औरत के शर में फंसता। उस औरत के शर ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी निस्वा। निस्वा के पाँव पर जैसे ही नजीब के आंसू गिरे, उसने आंखें खोलने की कोशिश की, पर नजीब जल्दी से उठ खड़ा हुआ था। कहाँ जा रहे हैं? आकर सो जाएं और दरवाज़ा लॉक करें, मुझे आपके घर वालों पर यकीन नहीं। नजीब का मुंह खुला रह गया था। आप जाग रही थी निस्वा? पर निस्वा करवट लेकर सो गई थी। निस्वा अब कभी नहीं बदलेंगी। दरवाज़ा लॉक करके वो जैसे ही दूसरी साइड पर आकर लेटा, निस्वा के माथे पर आते हुए बालों को पीछे किया था। निस्वा, मेरी जान तो बचा दी थी, फिर इस घर में मेरी ज़िंदगी में वापस आकर मुझे एक नई उम्मीद क्यों दिला दी? मैं जानता हूँ आप चली जाएंगी,
नजीब। निस्वा ने नजीब के हाथ को थाम कर तकिए पर रखा और ऊपर अपना हाथ रख दिया। मेरे पास गिनती का गिना चुना वक्त रह गया है नजीब, उसमें भी अगर अब आपका साथ छोड़ देती तो शायद उस बीवी के फराइज से मुंह मोड़ लेती। मेरी तो जिंदगी खत्म होने को है, क्यों ना मैं जाते जाते ये भी कर जाऊं। यही करती आई हैं आप सारी जिंदगी, आपकी इसी अच्छाई ने मुझे बेवफा बना दिया निस्वा। नजीब की आंखें जैसे ही भरी, निस्वा ने उसे अपनी ओर आने का इशारा किया। नजीब, बीवी की अच्छाई शोहर को और वफादार बना देती है, बागी नहीं। पर मैंने तो कर दी ना बगावत, और सब खराब भी कर दिया। निस्वा के कंधे पर सर रखे वो आंखें बंद कर चुका था। काश के दूसरी शादी करते वक्त हर शोहर एक बार पहली बीवी के उस दुख को समझ सके। आप मर्दों का क्या है, आगे बढ़ जाते हैं, पर वो बीवी बच्चों का हाथ पकड़े उसी जगह खड़ी रह जाती हैं। कितने साल तक पता नहीं चल पाता कि कहाँ जाना है। पर नजीब की तरफ से कोई जवाब न था, और फिर निस्वा भी खामोश हो गई। वो रात की तन्हाई में एक दूसरे की धड़कनें सुनते रह गए, जो हजार गिले शिकवे कर रही थी, मगर दोनों ही चुप थे। आपको जाना नहीं है सर? क्यों, मैं बॉस हूँ। ये तो सचमुच में जम गए हैं यहाँ। इनके असिस्टेंट को कॉल करती हूँ। मिस मनीषा, सोचिएगा भी मत, हम आज ऑफिस नहीं साइट सीइंग पर जा रहे हैं। पर मन्नान सर, वो तो शहरियार सर जाते हैं आपके साथ, आज से आप जाएंगी। व्हाट? मैं बाहर गाड़ी में आपका इंतजार कर रहा हूँ। मन्नान सोफे से उठकर अपना कोट पहने जाने लगा। कोट बटन बंद करते वो सीधा अपार्टमेंट से बाहर आया, पर मनीषा अभी भी उसी जगह थी। अब और कितना बर्दाश्त करना होगा? निस्वा मैम की खातिर कब तक खामोश रहूंगी मैं? मनीषा जल्दी में चेंज करके अपार्टमेंट लॉक करके बाहर चली गई। जहां मनीषा को आते देख मन्नान ने उसकी साइड का दरवाजा खोला था। वो लड़की उस शख्स की ये साइड देखकर भी हैरान रह गई थी। आप नशे में तो नहीं हैं? मैं सुबह सुबह ड्रिंक नहीं करता। मतलब पूरे इनकारी नहीं हैं आप? मन्नान को चैलेंज करते उसने पूछा। मैं पूरा इकरारी भी नहीं हूँ मिस मनीषा, बैठ जाएं, लोग देख रहे हैं। वो सीट पर जैसे ही बैठी थी मन्नान उसकी तरफ झुका था। सीट बेल्ट मिस मनीषा, या सॉरी। उसने बहुत सा फासला बढ़ाया था और मुंह पीछे कर लिया था अपनी सीट बेल्ट लगाकर। एग्जैक्टली नजीब, ऐसी क्या वजह थी कि अभी नीचे पुलिस को भी आपने बयान नहीं दिया कि वो अम्मारा थी? बहुत गहरा इश्क है। निस्वा ने कमरे में आते ही चिल्लाना शुरू कर दिया था। निस्वा, आप इतने यकीन से कैसे कसम खाएं मेरी, और कहें कि वो अम्मारा नहीं थी? नजीब का हाथ अपने सर पर रखकर उसने नजीब की आंखों में देखते ही पूछा, जिस पर नजीब ने मुंह फेर लिया था। निस्वा, आप इन मामलात में दखल अंदाजी मत करें। क्यों ना करूं? आखिर ऐसा क्या है उस औरत में? क्यों कुछ भी नहीं बोल रहे लोगों के सामने? उसने मारने की कोशिश की आपको? क्योंकि जिस शख्स ने उसकी खातिर अपनी बीवी को ठुकरा दिया, अपने बेटे को ठुकरा दिया, सब रद्द कर दिया, उसी शख्स को मारने की कोशिश? बल्कि मार ही दिया था नजीब, अगर वक्त पर आपको अस्पताल न ले जाया जाता। नजीब साहब ने कुछ न कहा, बस विंडो की तरफ चल दिए। निस्वा की हर बात उन्हें चुभ रही थी। वो किसी अच्छी बीवी की तरह नीचे 2 घंटे तक सबके सामने चुप रही थी, और जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ उसका गुस्सा थमने में नहीं आ रहा था। अब चुप क्यों है? क्यों उसकी सच्चाई सामने नहीं लाने दी? किस चीज का डर था? दुनिया को भी तो पता चलना चाहिए ना सच। क्या सच पता चल जाता दुनिया को? उसने मुझे मारना चाहा, पर क्यों मारना चाहा निस्वा, जानती हैं आप? नजीब की आवाज़ थोड़ी ऊंची हुई तो वो भी ठहर गई थी। गुस्से से नजीब की आंखें भी सुर्ख हो चुकी थी, पर वो गुस्सा उन्हें निस्वा पर नहीं, खुद पर था, अपने गुनाहों पर था, अपनी गलतियों पर था। जाहिर है आप क्यों लोगों के सामने अपनी बीवी की लालच? निस्वा, वो लालची ही नहीं, बेहया भी है। लोगों के सामने उसकी असलियत नहीं, मेरी गैरत आएगी जब दुनिया को ये मालूम होगा कि वो दोनों बच्चे मेरे नहीं किसी और के हैं। मैं उस बेगैरत के लिए नहीं, अपनी इज्जत के लिए मर रहा हूँ। इसलिए उसने मुझे खत्म करने की कोशिश की ताकि एक ही बार में मार सके। निस्वा 5 मिनट तक कुछ बोल ही नहीं सकी। उसका दिल चाहा कि दिल खोल कर हंसे उस शख्स पर, उसके इंतखाब पर, और एक तरफ दिल तरस खाने लगा जब नजीब ने सर झुकाया। बिस्तर पर बैठा वो शख्स नजीबा फंदी लग ही नहीं रहा था। निस्वा, आप देख लें जो मैंने आपके साथ किया, अल्लाह ने मेरे साथ क्या कर दिया। मैं बावफा बीवी को छोड़कर दूसरी औरत को अहमियत दे रहा था, उस औरत ने किसी और को अहमियत दी। मैं भूल गया था कि मकाफाते अमल अटल है। मैंने अपने बेटे को ठुकराया, और देखो ये औलाद भी मेरी नहीं। अब माफ़ी मांगूंगा तो अपनी नज़रों से ही नीचे गिर जाऊंगा निस्वा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप चली जाएं यहाँ से।
वो तो दोनों हाथों में मुंह छुपाए बैठ गया था। निस्वा आहिस्ता कदमों से उसके पास आई। नजीब के बालों में हाथ जैसे ही रखा वो अपने हिसार में भर चुका था उसे। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी अपने हरजाई को, मगर कुछ नहीं कहा। नजीब, मैं रात की तन्हाई में अपने बेटे के साथ इस घर से इतने साल पहले निकल गई कि कहीं दिन का उजाला आपकी शानो शौकत में फ़र्क ना ले आए। मैं जहाँ भी गई आपका नाम नहीं जोड़ा अपने नाम के साथ कि कहीं आपकी इज्जत पर हर्फ ना आ जाए। किसी को आपका मालूम नहीं होने दिया, बस जिंदगी में चलती रही। और आप नजीब, अपनी वेश से नजीब का चेहरा उठाए उसने ऊपर किया था। नजीब, ये इंतखाब था आपका, बहुत घाटे का सौदा किया आपने, उसके लिए हरजाई बन गए और सब दांव पर लगा दिया। नजीब की आंखों से आंसू साफ करते हुए आहिस्ता से उसने पूछा, बहुत खसारे में रहा हूँ निस्वा, दूसरी शादी के चक्कर में सब दांव पर लगा दिया, बहुत खसारा कर लिया मैंने अपने साथ। मुझे धोखा देने वालों को एक जिंदगी भी पछताने के लिए कम पड़ जाती है मिस मनीषा। अभी तुम्हारा पछतावा शुरू होगा। सर, ये वो डिटेक्टिव की इन्फॉर्मेशन है जो आपने मांगी थी। अब तुम जा सकते हो और उस डिटेक्टिव को अंदर भेज दो। और मिस मनीषा को कहो कि 2 कप चाय लेकर आ जाए मेरे कैबिन में। वो कॉन्फ्रेंस रूम से डायरेक्ट कैबिन की तरफ गया था। सर, आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो ये रहे। वो ब्लड रिलेटेड है मिस्टर नजीब आफंदी के, उनकी बहन की पहली औलाद। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मिस मनीषा ये सब जानती थी और शायद वो किसी प्लान के तहत। डिटेक्टिव की बात खत्म नहीं हुई थी कि कैबिन का दरवाज़ा नॉक हुआ। मन्नान ने अंदर आने का कहा तो मनीषा को देखकर वो हैरान हुआ था और फिर मन्नान की तरफ देखा। आप अपनी रिपोर्ट जारी रखिए। सर, ये क्लाइंट ने जो सबसे बड़ी बात आपसे छुपाई वो जानबूझकर, शायद आप अपने गुस्से पर कंट्रोल ना कर पाएं। और वो क्या है? सर, शुगर कितनी? मिस मनीषा, इतनी काफ़ी है, अब आप जा सकती हैं। मन्नान को एकदम से जल्दी हुई थी वो सच जानने के लिए। यहाँ तक मेरा शक सही साबित हुआ। क्या माँ को भी धोखा दे रही थी ये? क्यों है इतनी मुनाफकत आफंदी खून में आखिर? वो उठकर विंडो के करीब चला गया था। क्या सच है? सर, आपकी मॉम, उनका कैंसर वापस आ चुका है और ये बात भी मिस मनीषा को मालूम थी। वो काफ़ी बार मैम को हॉस्पिटल लेकर जा चुकी हैं। मन्नान ने विंडो के शीशे पर मुक्का मारकर उसे तोड़ दिया था। सब कुछ यहाँ रख कर चले जाओ। कैबिन का दरवाज़ा जैसे ही बंद हुआ मन्नान ने दोनों हाथ डेस्क पर मारे थे और वो सब तस्वीर, सब डॉक्यूमेंट्स पूरे रूम में बिखर गए थे। मैं जितना सोचता था कि तुम सबसे अलग हो, सबसे, तुम साफ दिल की हो, पर तुम तो सबसे बदतर निकली मनीषा। अब तुम देखो मैं करता क्या हूँ तुम्हारे साथ। मेरी माँ को उनकी बीमारी का मुझसे छुपाने का भी तुमने ही कहा होगा। कुछ तो है जो उन्होंने अपने नाम नेहाद शोहर को बता दिया, तुम्हें बता दिया, पर मुझे और हूरब को नहीं बता सकी। वो हाथ से खून बह रहा था जब फिर से कैबिन का डोर नॉक हुआ था। मुझे किसी से बात नहीं करनी। चाहे मिस मनीषा, अभी आपकी ज़रूरत नहीं है। निस्वा, बंद आंखों से जब बिस्तर की दूसरी साइड पर उसने हाथ रखा तो जगह खाली थी। उसकी आंख खुल गई। निस्वा, ना वो रूम में मौजूद थी, ना उनका सेल फोन साइड टेबल पर था और ना ही पर्स, और वो लगेज भी नहीं था। बैकग्राउंड के साथ टेक लगाकर आंखें बंद की तो उन्हें एक ऐसी ही रात याद आ गई जब वो दूसरी शादी के लिए अपनी बीवी को ऐसे ही सोता छोड़कर चले गए। अब वही सब उनके साथ हो रहा था तो उन्हें तकलीफ हो रही थी। वो कौन सा किसी और के लिए मुझे छोड़कर गई है? मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ? निस्वा मेरी है। पर उज़ैफ़ा, उज़ैफ़ा का नाम ज़हन में आते ही उसकी सारी नींद उड़ गई। वो कमरे से जैसे ही बाहर निकला एक गार्ड खड़ा था जिसने नजीब को बाहर जाने से रोक दिया। सर, निस्वा मैम का हुक्म, उसे फ़िक्र है मेरी। मैं उसे उस हैवान के साथ ऐसे नहीं छोड़ सकता। उन तीनों को बचाना होगा मुझे, अपने बच्चों को और अपनी बीवी को। नजीब जल्दी जल्दी गार्ड को पीछे धकेल कर नीचे उतरा था और जैसे ही बाहर जाने लगा जब वालिद ने नजीब का रास्ता रोक दिया। नजीब बेटा, डिनर करो साथ बैठकर, इस वक्त बाहर मत जाओ, आगे ही तुम इतने बड़े हमले से बचे हो। डैड, बाहर से ज़्यादा ख़तरा मुझे यहाँ है। अगर यहाँ महफूज होता तो कभी मेरी बीवी उस गार्ड की ड्यूटी लगा कर ना जाती यहाँ। डैड रुक जाए। इस बार शिजा ने रास्ता रोका था। डैड लव्स। नजीब कैसे खुद को एक वक्त निस्वा से ज़्यादा कामयाब समझने लगा था और आज वही लव्स, वही बच्चे उसे जहर लगने लगे थे। आइंदा मेरा रास्ता मत रोकना। वो ड्राइवर को साथ लिए निस्वा के घर तो पहुंच गया, पर वहां निस्वा को उज़ैफ़ा की गाड़ी में जाते देख नजीब आफंदी खुद को सब हारते हुए महसूस कर रहा था। जैसे कुछ घंटे पहले तक ये यकीन था कि वो बीवी को जीत गया है, बच्चे भी पा लेगा, मगर हकीकत तो कुछ और ही थी।
मैम आप प्लीज़ मन्नान सर को बता दें, उनसे मत छुपाएं, वो टूट जाएंगे। मैं नहीं बता सकती बेटा, और मैं इसलिए ऑफिस नहीं आई कि तुम मुझे ये बातें करके डिस्टर्ब करो। ठीक है, अगर आप सर को नहीं बता सकती तो आप, मैंने कुछ भी नहीं बताया, अब जाओ यहाँ से। मैम, निस्वा के उस लहजे पर मनीषा हैरान हो गई थी। इतने गुस्से से पहले कभी उसने उससे इस तरह से बात नहीं की थी कभी। मिस मनीषा, जब उन्होंने कह दिया कि आप चली जाएं तो जाइए, मैं हैंडल कर लूँगा यहाँ सब। जी। वो सर झुकाए चली गई थी। निस्वा ने रोकने की कोशिश की, वो शर्मिंदा हुई थी अपनी ऊंची आवाज़ पर। जाने दे माँ, अब ज़रा हम माँ बेटे की बात हो जाए। मन्नान बेटा कब बता रही थी इस बारे में? जब मेडिकल रिपोर्ट सामने रखी तो निस्वा ने आंखें बंद कर ली थी। आंखें बंद कर लेने से सच्चाई बदल नहीं जाती, मुंह फेर लेने से आप मुझे झुठला नहीं सकती माँ। यहाँ देखें मेरी तरफ, ये दूसरी बार हुआ है। क्यों आप ये साबित करने पर तुली हैं कि मैं एक निकम्मा बेटा हूँ आपका? मन्नान बेटा प्लीज़ ऐसा मत सोचो, मैं तुम्हें और हुरब को परेशान, जब खामोशी से चली जाती तो क्या हम परेशान ना होते? हम दोनों कोसते नहीं खुद को? क्या हम जिंदा रह लेते आपके बगैर माँ? हम भी मर जाते, अल्लाह ना करे मेरे बच्चे। मन्नान का चेहरा हाथों में लेने की कोशिश की तो मन्नान पीछे हो गया था। मन्नान बेटा प्लीज़ माँ को माफ़ कर दो, मैं बताने वाली थी, मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा, बस बहुत हो गई आपकी मनमानियाँ। मैं ठीक हूँ मन्नान, वो तो डॉक्टर डिसाइड करेंगे। इसी हफ्ते की फ़्लाइट है आपकी, आप यहाँ से जा रही हैं। अगर चाहती हैं मैं नाराज़ ना हूँ तो आपको मेरी हर बात मानना होगी। हुरब भी साथ जाएगी आपके। बस मैं जो भी कुछ ज़रूरी काम है वो निपटा कर वहीं आ जाऊँगा। निस्वा का मुंह शौक से खुला था, सब कुछ तो तय कर चुका था उनका बेटा। वो जो इलाज से दूर भाग रही थी वो भी तय कर लिया था उसने। उन्होंने गहरा सांस भरा था। मन्नान कैबिन के डोर हैंडल पर हाथ रख के खोलने लगा था जब माँ की बात ने उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी। अगर तुम चाहते हो कि मैं खुशी खुशी इलाज करवाऊं तो तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर इस ख्वाहिश को पूरा कर दो, मनीषा से शादी कर लो। व्हाट? उस मिडिल क्लास उस खू वो कहते कहते रुका। बस ये शर्त मान लो, मैं भी जाने को तैयार हो जाऊंगी। यही आखिरी फैसला है तो यही सही माँ, आपके लिए मेरी जान भी कुर्बान है। वो मान जाएगी तो इसी हफ्ते मंगनी रख देंगे, बाकी आपके आने के बाद। सही माँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करने वाला। थैंक यू सो मच बेटा, तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया, बहुत खुश कर दिया। निस्वा उठकर बेटे के पास गई थी और उसके माथे पर बोसा दिया था। उन्हें क्या मालूम था कि जब वो वापस आएंगी तो जितनी मोहब्बत आज बेटे से हो रही है उतनी ही वो उससे नफरत करने लगेंगी।